Hello everyone, welcome back to this course on quantitative methods at Econometrics. Well, not the course, we are still prepping for the course. So this is the Straighten Your Stats series in which we are getting up to date, right? We are refreshing our memory with whatever are the requisite tools for this model, for this course, right? So in today's lecture, what we will do, first of all, we will start with dummy variables and interaction term. Understanding these two and how to interpret a regression model which has dummy variables and which has interaction term is very important for the kind of models and the kind of studies that we are going to do in this course, right? And उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो सारे assumptions हमने कल state किए थे, under which the OLS estimators have those desirable qualities of unbiasedness and minimum variance. We will see that what happens as you violate one assumption at a time. Okay, so this is what we're going to do. We will keep the star assumption for the end, and let's get started. Okay, so what we are going to do today is dummy variables or binary variables. But before I get to that, we need to discuss an alternate way of looking at the population regression function. I did not do it earlier because we did not have those assumptions with us, right? So then consider that your population regression function looks like this. So this is your PRF, right? Where your suppose yi is some function of xi. Let's have xi. We can have one or two xi's, but we can simply work with one xi plus ui. ठीक है, so एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल, ये एक सिंपल linear regression model है. And this is where we are going to build our foundation for the future, right? So now, suppose I ask you to take conditional expectation, right? So you can take conditional expectation, but अगर equality है तो जो भी सुलूक लेफ्ट हैंड साइड के साथ होता है वही सेम सुलूक राइट हैंड साइड के साथ भी होता है. सो इफ यू टेक कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ yi कंडीशनल ऑन द xi, ठीक है, conditional expectation of yi, this is equal to what is the conditional expectation of beta naught? याद रहे बेटा नॉट एक कांस्टेंट है. हम अभी पॉपुलेशन मॉडल की बात कर रहे हैं. सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट बेटा नॉट हैट विच इज अ रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ, जिसका हम कुछ एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं. बेटा नॉट एक पैरामीटर है, एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन एक कांस्टेंट होता है, राइट? प्लस बेटा वन, क्योंकि कांस्टेंट है एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर के बाहर आ जाता है, expectation of xi given xi plus the expectation of ui given x, right? Why are we doing it? We just want to see, पहली बात तो हम क्यों कर रहे हैं. ये जो टर्म है expected value of yi given xi, this is telling you what? You give me a value of xi, right? I'll give you the expected value of yi, है ना? जो ये पूरा PRF होता है, ये PRF नहीं है, खैर ये तो मॉडल है, right? This is the model, not the PRF. This is your PRF, है ना? इतना जो पार्ट रहेगा, this is the function, and if you include the error term, you have the model, ठीक है? Population regression model. तो PRF क्या करता है? You give me a value of xi, it will give you a predicted value of yi, ठीक? बट हम उसको वैसे भी देख सकते हैं कि अगर तुम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ले लोगे, देन यू आर टेलिंग मी दैट you give me a value of xi, right? And I will give you, or this PRF will essentially give you the average value of y. But ये है हमारा LHS. अब देखते हैं RHS पे क्या चल रहा है, राइट? इसका मतलब समझ में आ गया. जो हमने ग्राफ भी बनाया हुआ था ना, ऐसा ग्राफ बनाया था, right, where you have some value of x1 x2 x3, जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ रेंज ऑफ y वैल्यूज हैं, उनका एक्सपेक्टेशन हम मांग रहे हैं. मैंने तुम्हें x वैल्यू दी, बताओ कि एवरेज में इसमें y वैल्यू कितनी है.
अगर किसी का सीजीपीए 8 है तो मतलब जिन सब लोगों का सीजीपीए 8 है, ऑन एन एवरेज उनका एनईपी से सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, ये हम पूछ रहे हैं। ठीक। नाउ ऑन द आरएचएस लेट्स लुक व्हाट देयर इज। बेटा नॉट तो बेटा नॉट है, राइट। बेटा 1 जो है वो कांस्टेंट है, और व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई गिवन एक्स आई? इट इज एक्स आई। यू व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन अगर तुम्हें यही इंफॉर्मेशन मिल जाए? ये क्या है? ये दिस इज सेइंग दैट इफ आई टेल यू व्हाट एक्स आई इज, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई? अरे तुमने तो मेरे को सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया ना भाई। तो एक्स आई का एक्सपेक्टेड वैल्यू, कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? द एग्जैक्ट वैल्यू। इट्स नॉट, आई एम नॉट आस्किंग यू कि एक्स आई का वैल्यू दिया, आप वाई आई का एक्सपेक्टेशन बताओ। मैंने बोला एक्स आई का वैल्यू दिया, एक्स आई का एक्सपेक्टेशन बताओ। भाई तो एक्स आई तो वैल्यू तुमने मेरे को दे ही दिया, दैट इज एग्जैक्टली एक्स आई। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्थ या फिफ्थ assumption जो हमने किया था, द जीरो कंडीशनल मीन assumption, right? It will be zero under the zero condition mean assumption. So what we have is that the expected value of yi given xi is equal to this under the zero conditional mean assumption, right? Which means अब ये right hand side क्या है? ये right hand side exactly इस PRF का right hand side है ना? तो इसका मतलब कि जो भी PRF होता है ना, that is essentially doing what? If this is the PRF, right? This is the regression function in the population. This is telling you what? This is telling you that for any x value that you give me, कोई भी value हो सकता है, the PRF gives you the expected value of y. ठीक है? इसका मतलब कि बट, राइट, अभी आते हैं उसके ऊपर। PRF gives you the expected value of y. तुम मेरे को एक CGPA का वैल्यू दो, मेरा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन तुम्हें ऑन एवरेज बता देगा कि उसमें एनईपी सेटिस्फैक्शन लेवल्स क्या है उन बच्चों का, जिन बच्चों का सीजीपीए 7 है, जिन बच्चों का सीजीपीए 8 है। और अगर सीजीपीए बढ़ने के साथ साथ ये एक्सपेक्टेड वैल्यू बढ़ रही है तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना? ऑल राइट, सो देन द इम्पॉर्टेंट assumption over here is the ZCM assumption. तभी है, अगर नहीं है, अगर वो सेम नहीं है, अगर xi के वैल्यू के चेंज होने के साथ साथ ui का वैल्यू भी चेंज होता रहता है, तब तो ये नहीं होल्ड करेगा, है ना? तब तो नहीं होल्ड करेगा। तुम्हारे xi बढ़ रहा है तो तुम्हारा ui कुछ और है, तो तुम्हारा जो PRF है वो तुम्हें एग्जैक्टली ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब xi बड़ा होगा प्रॉब्ली तो ui का वैल्यू भी ऑन एन एवरेज बड़ा हो जाएगा। ठीक है? सो दिस पर्टिकुलर नो इंटरप्रिटेशन ऑफ PRF या फिर जो पॉपुलेशन मॉडल है वो आता है जीरो कंडीशनल मीन assumption के साथ। सो इफ your ZCM assumption is satisfied, the PRF will give you the expected value of yi given xi. Cool? ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को समझना। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है? नाउ लेट अस मूव टू व्हाट आर कॉल्ड बाइनरी या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या फिर डमी वेरिएबल्स। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ वी वांट टू डिस्कस बाइनरी वेरिएबल्स। अभी तक हमने जो भी variables include किए, right? We talked about variable like wages, right? Education, IQ, CGPA, satisfaction with the NEP, right? Height, weight. ये सारे variables क्या होते हैं? ये सारे variables हैं quantitative variables. ठीक है? These are quantitative variables and they are quantitative because जो इनका नंबर है उसका कोई मतलब है, राइट? अगर तुम बोलते हो कि कोई 5-5 है, उस 5-5 का कोई मतलब है। तुम 5-5 को अपने मन से 6-10 नहीं बोल सकते हो अनलेस तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? 5-5 का एक मीनिंग है।
अगर तुम बोलते हो किसी के सीजीपीए 9 है, तो उसी पॉपुलेशन में, मतलब ऑब्वियसली एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल, डोंट गेट इनटू द फिलॉसफी, बट द आइडिया इज दैट उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में उस सीजीपीए 9 का एक मतलब है। तुम अपने आप रैंडमली उसको इधर उधर नंबर नहीं दे सकते हो। एज कंपेयर टू किस चीज को दे सकते हो? क्वालिटेटिव वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर जेंडर। जेंडर एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है। क्यों बोल रही हूँ मैं? जेंडर को अगर तुमने सपोज you start with two genders, you can start with any number of genders, but for keeping things simple, let's start with two genders, right? Then you have males and females. अब जो है, जो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है, उसको हम मतलब हमको कोई ना कोई नंबर चाहिए। रैंडम वेरिएबल जो है वो कोई ना कोई नंबर ही असाइन करता है ना आउटकम को। सो दिस इज योर वेरिएबल, राइट? यू वेंट टू whatever population, collected your sample. One of the variables on which you collected information was gender, right? So you noted down someone was male, 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 then female, then male, female, female, blah blah blah, है ना? अभी ये एक क्वालिटेटिव रैंडम वेरिएबल है। तुम क्या कर सकते हो? तुम एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंटल आउटकम का। सपोज यू create a random variable called male. This random variable takes a value 1 whenever the actual person was male, 0 when she was a female. लेकिन तुम एक और काम कर सकते हो, तुम फीमेल भी असाइन कर सकते हो। तुम इसी पे यू कैन असाइन अनदर रैंडम वेरिएबल female that takes a value 1 whenever a female was encountered and a value 0 whenever a male was encountered, right? And you know what? You don't even have to give these numbers. Suppose तुमने एक और random variable assign किया जिसको हमने कहा कि I don't know, men. This men takes a value of 500 whenever the observation is a male, and it takes a value of 30,000 whenever the observation is a female. सोच के देखो, इन नंबर्स का एक्चुअल कोई मतलब नहीं। All you need to do, right, is a different number for the different category. That is all. That is all these numbers are specifying. ये क्या है? ये एक बर्नौली वेरिएबल है ना, एक ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल। तुम चाहे इसको, मतलब बर्नौली के साथ काम करना इजियर होता है, इसलिए हमने 0 1 से शुरू किया। बर्नौली में एक को 0 एक को 1 देते हैं, है ना? उसका क्या रीजन है? I'll come to it. We will also do 0 1. But think about it, 0 1 is one of the options that you have. It's the best option, but it's one of the options. All you are doing is choosing a different number for the two groups. The numbers don't actually mean anything. तुम चाहे इसको 0 दो, चाहे उसको 1 दो, as long as all females get one number, all males get one number, you have actually described the data. You can have more than two categories. Suppose a third gender you want to include. Suppose you want to look at religion. Suppose you want to look at caste. Suppose you want to look at CGPA को ही तुमने जो है 2 में डिवाइड कर दिया, above average, below average. These are all then what are called qualitative variables. They are also called categorical variables, right? If there are only two categories, they are also called binary variables. ठीक है? अच्छा, और ये जो तुमने उनपे, मतलब इस कैटेगोरिकल वेरिएबल के ऊपर जो ये आरवीज डिफाइन किए हैं, इनको बोलते हैं डमी आरवीज, डमी वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि तुमने एज मतलब एक डमी सेट किया है। नंबर्स का कोई एक्चुअल मतलब नहीं है। एज अपोज टू अगर सीजीपीए होता तो तुम 5,000 और 30,000 नंबर नहीं देते फिरते ना, तुमको वही नंबर देना पड़ता। नंबर का मीनिंग था, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। ये डमीज है, एक डमी सेट किया गया, एक मतलब एक कहते हैं ना कि अपनी जगह एक डमी बिठा दो।
वैसा एक डमी बैठाया गया है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे डमी वेरिएबल्स। सो व्हेनेवर यू हैव अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, यू कैन क्रिएट डमी वेरिएबल्स बेस्ड ऑन दैट categorical variables, and you can have as many dummy variables as there are number of categories, है ना। अगर इसमें तुम थर्ड जेंडर ऐड करना चाहते हो, इसमें तुम LGBTQ का कैटेगरीज ऐड करना चाहते हो, you can do that. And then if you have suppose 7, 8, 9 categories, you can create 7, 8, 9 dummies based on that. Cool. ये आइडिया है डमी वेरिएबल। अब ये देखते हैं कि हम इन्हें रिग्रेशन में कैसे इंक्लूड करेंगे और इनका मतलब क्या है रिग्रेशन में इंक्लूड होने का। सपोज यू जस्ट वांटेड टू लुक एट के जो वो है ना सेटिस्फैक्शन लेवल विद एनईपी। सपोज तुम ये देखना चाहते थे कि एनईपी का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो जेंडर पे कैसे डिपेंडेंट है। एंड दिस इज द मॉडल दैट यू बिल्ट, ठीक है। अब बात ये है कि जेंडर पे जब हम डिपेंडेंस देखते हैं तो हम जेंडर की जगह यहाँ पे हमें नंबर ही चाहिए ना, हम यहाँ पे MF तो नहीं डाल सकते, हमको एक नंबर डालना है। अब बात यह है कि जब तुम जेंडर की जगह एक ऐसा डमी डालोगे जो एक 0, 1 वेरिएबल, तो इसका एक बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा। लेट्स सी हाउ। सो व्हाट वी हैव इज, नाउ सपोज यू वांट कि तुम्हें जेंडर को किसी तरह इंक्लूड करना है इसमें। सपोज we'll see why. Suppose you chose कि हम एक फीमेल डमी बिठा देते हैं जेंडर की जगह, right? So then this female dummy does what? It takes a value 1 whenever the observation was female, and otherwise it takes a value 0. So your equation becomes this. ठीक है। अब देखो कि बेटा 1 क्या सिग्निफाई करता था। और यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक दिस, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, right, of, just bear with me, and this is something that you will need to learn to do on your own when you are building, RCTs जब बनाएंगे, DIDs जब बनाएंगे, तब ये सब चीज करनी आनी चाहिए। So what is the expected value of NEP, right, satisfaction level given FI, all right, इसका क्या आएगा, बेटा नॉट प्लस बेटा 1 FI, ठीक है, फीमेल प्लस 0 अंडर 0 कंडीशनल मीन assumption। Cool. अब देखो कि ये जो FI है, पहले तो हम CGPA जैसी चीज ले रहे थे, CGPA कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, CGP कैन यू कैन थिंक दैट इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, लेकिन FI तो ऐसा नहीं है, FI के दो ही वैल्यूज हैं, दोनों डाल के देखते हैं ना क्या आता है। सो व्हाट वी हैव, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ NEP गिवन FI इज इक्वल टू 1, या तो 1 लेगा या तो 0 लेंगे, ठीक। दिस इज व्हाट, बेटा नॉट प्लस बेटा 1 टाइम्स FI, और FI का वैल्यू हमने कितना फिक्स कर दिया, 1 किया ना यहाँ पे। गिवन दैट FI इज इक्वल टू 1, सो FI की वैल्यू की जगह 1 डाल दो, विच इज इक्वल टू बेटा नॉट प्लस बेटा 1, ठीक। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ NEP गिवन FI इज इक्वल टू 0, बेटा नॉट प्लस बेटा 1 इंटू, अब FI क्या है, 0 है, 0, which is equal to beta naught. Let's do this now. What is the difference between the average NEP satisfaction levels among females and males? Beta 1. So beta 1 is what? Beta 1 gives you the average difference, right, between the satisfaction levels or between the NEP happiness levels between the two genders. बढ़िया ना, क्या मिला हमको,
ये जो हमारा कोएफिशिएंट था, this is basically capturing the difference in the expected values of the dependent variable across the two categories. If it is Fi, then it captures the satisfaction among females minus that of males. सेम जगह पे तुम एम आई भी डाल सकते हो और तब ये बेटा वन कैप्चर करेगा डिफरेंस बिटवीन, लाइक यू विल हैव बेटा नॉट प्लस बेटा वन विल देन सिग्निफाई दी सेटिस्फैक्शन लेवल्स अमंग मेल्स, और बेटा नॉट होगा फीमेल्स का क्या है. दिस इज द पावर ऑफ बाइनरी वेरिएबल, एंड इसीलिए हम ये 0 1 करते हैं ताकि ये मतलब गायब ही हो जाए. अब तुम इसमें 30,000 50,000 लगाओगे तो ये कोई ऐसा नंबर आ जाएगा जिसका कि वैसे ही कोई मतलब नहीं था और अब और भी कोई मतलब नहीं रहेगा. But if you put 0 and 1, if you put them as these categories, these have such a nice interpretation. बेटा नॉट क्या है? बेटा नॉट है जब ये वाला, बेटा नॉट क्या होता था? जब तुम्हारा x वेरिएबल का वैल्यू 0 हो. मतलब बेटा नॉट क्या है? जब तुम्हारा फीमेल Fi is equal to 0. मतलब the average expected or the average NEP satisfaction levels among males. And beta naught plus beta 1 का जो भी वैल्यू होगा, that is the average satisfaction levels among females. और difference क्या है? beta 1. Right? So what we have is this, the graph kind of looks like this. So now you have two PRFs, right? So if this is your gender, right, or not gender, but जो ऐसे भी देखना चाहो, you can have another variable also इसमें added. इसमें अगर तुम दूसरा variable add करते हो, let's draw the graph after this. Suppose you have a model like this, that your NEP is equal to beta naught plus beta 1 Fi plus beta 2 CGPA, right? Plus UI, of course. Then under the expected value of NEP given females, मतलब जब Fi equal to 1 है ना, this is equal to beta naught plus beta 1 plus beta 2 CGPA, and the expected value of NEP among males, मतलब जब Fi का वैल्यू 0 है, that is beta naught plus beta 1 गया तेल लेने, you are left with beta 2 times CGPA under ZCM. कितना इंपॉर्टेंट है ZCM देखो, ठीक है. तो अब क्या मिला है हमको, यहाँ पे दो PRFs मिल गए हैं. देखो बेटा नॉट और बेटा 1 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, हम उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं. एंड व्हाट वी हैव इज, नाउ व्हेन यू ड्रॉ दिस PRF on which you have CGPA on the x-axis and NEP happiness levels on the y-axis, ये सपोज अगर बेटा नॉट और बेटा 1 दोनों पॉजिटिव हैं, टेकिंग द सिंपल एग्जांपल, तो दिस विल बी द PRF फॉर मेल्स, जिसका इंटरसेप्ट होगा बेटा नॉट और जिसका स्लोप होगा बेटा 2, है ना, क्योंकि CGPA ही है एक्स एक्सिस पे, तो स्लोप तो बेटा 2 है. नाउ व्हाट अबाउट फीमेल्स? फीमेल्स के लिए स्लोप तो बेटा 2 है, लेकिन इंटरसेप्ट कितना है? बेटा नॉट प्लस बेटा 1, मतलब पैरेलल शिफ्ट, सॉरी, दिस डिस्टेंस विच इज बेटा नॉट प्लस बेटा 1, स्लोप अभी भी बेटा 2 है. Okay, this is what dummy variable does. It basically gives you, you know, if this is the way you have formulated it, इसमें सिर्फ intercept difference है, इसमें slope difference नहीं है. You can also have slope differences. So right now in this simplest model, including a female dummy, right, basically tells you कि जो males और females का PRF है ना, जो मॉडल है, वो एक्चुअली डिफरेंट है, वो दो लाइंस पे ऑपरेट करते हैं.
इवन दो अगर तुम CGPA को ऊपर नीचे करते हो तो द चेंज इन द NEP हैप्पीनेस लेवल्स विल बी द सेम फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, है ना, वो β2 ही होगा, लेकिन जो बेस लेवल है वो दोनों का अलग है। सो देन यू विल हैव β2 प्लस β0 शुरुआत में, है ना, फॉर मेल्स, लेकिन फीमेल्स के लिए दे विल बी स्टार्टिंग एट अ हायर हैप्पीनेस लेवल इवन इफ देयर CGPA इज 0, इफ दिस इज द ट्रू मॉडल ऑफ कोर्स, है ना। ये मत सोचना कि ना कि ये क्यों ऐसा क्या ऐसा, नहीं, हम मॉडल की बात कर रहे हैं, राइट। दिस इज योर डमी वेरिएबल, राइट। ओके, okay, now a couple of things about the dummy variables, ऐसे हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको। पहली बात कि if you have two categorical variables, right, you can have only one dummy variable. Dummy variable trap बोलते हैं इसको, which basically means that if you have a categorical variable जिसमें दो categories हैं like males and females, तुम एक फीमेल डमी और एक मेल डमी इंक्लूड नहीं कर सकते, और उसका रीजन बहुत सिंपल है। फीमेल डमी और मेल डमी क्या है, योर FI इज इक्वल टू 1 माइनस MI या MI माइनस 1, MI माइनस 1 एक्चुअली। whenever your MI takes, yeah, 1 minus MI, whenever your MI takes a value 1, right, FI takes a value 0, whenever your MI takes a value 0, FI takes a value 1, है ना। ये है रिलेशनशिप बिटवीन FI एंड M। अब ये क्या है, ये है एक परफेक्ट कोलिनियरिटी। इसका मतलब एक बार तुमने MI स्पेसिफाई कर दिया तो यू विल ऑटोमेटिकली नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ FI। सिमिलरली वंस यू स्पेसिफाई FI यू विल एग्जैक्टली नो द वैल्यू ऑफ MI। ये लोग परफेक्टली कोलिनियर है, दोनों को इंक्लूड करोगे तो एक जो एक्स्ट्रा तुमने ऐड किया है वो अपना कोई इंफॉर्मेशन नहीं ला रहा, देयर इज नो independent variation in the other variable. This is a classic violation of your third assumption, which was no perfect collinearity. ठीक है, यहाँ पे ये लोग परफेक्टली कोलिनियर, दोनों को इंक्लूड करोगे, जो भी प्रोग्राम में डालोगे वो वेरिएंट ड्रॉप कर देगा उसको, right? So if you do this, you will get into what is called a dummy variable trap, and you cannot do this, right? So if you have n minus 1 categories, sorry, n categories, so then you can have n minus 1 dummy variables in your model. Second thing, second जो terminology है जिसको बोलते हैं base group। यहाँ पे दो ग्रुप्स थे, मेल्स एंड फीमेल्स, तुमने डिसाइड किया फीमेल्स को इंक्लूड करने के लिए, तो तब मेल बिकम्स, जो मेल कैटेगरी है दैट बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड द बेस ग्रुप। सो बेस ग्रुप इज बेसिकली द ओमिटेड category, and this will become more clear when we discuss the case of multiple dummy variables. So you can have multiple dummy variables in the same model. So you can define, you can have a model that looks like this. So your NEP, you say that I want to see how it depends on the gender. So you include the female dummy, and then you say that बाकी तुमने वो तो include किया ही हुआ था CGPA, and then you include a third variable. Suppose you want to see that how it depends on, I don't know what else does it depend on, whether or not, I don't think religion and caste are important over here. You can say that whether or not they are single child. Okay, so single child, इसका आंसर भी yes या no हो सकता है ना, plus UI. So now what is the base category over here? देखो, सिंगल चाइल्ड ये वाला जो डमी वेरिएबल है, इट टेक्स वैल्यू 1 फॉर फीमेल्स,
तो इसने क्या ड्रॉप किया, मेल्स को। ये जो सिंगल चाइल्ड है, इट टेक्स वैल्यू 1 फॉर सिंगल चाइल्ड, एंड इसने क्या ड्रॉप किया, नॉट सिंगल चाइल्ड, मतलब जिसके भी सिबलिंग्स हैं। So all comparisons are with base category, always. All comparisons are made with the base category. Okay. So what is the base group over here? Here the base group is males. Here the base group is non-single child kids. ठीक है. So तब क्या होगा हमारा? Again, your beta 1 is going to be the difference between NEP levels between, like, taking all the other things as given, between females and males, right? So you can just write it quickly and see. Expected NEP given females is what? This is equal to beta naught plus beta 1, right? Plus beta 2 times CGPA. हर किसी का CGPA अलग अलग भी हो सकता है ना? Plus beta 3 times whatever the person is, single or not. और expected NEP of males, ये सारी चीजें, बट एक चीज एब्सेंट हो जाएगी इसमें से, वो है beta 1. Right? So when you take the difference, everything gets cancelled and the only thing that is remaining is beta 1. So you can have the second category also, उसका भी comparison अपने base group के साथ होगा जो भी तुमने omit किया है. अगर तुम ऐसा वेरिएबल इंक्लूड करते हो जिसकी 3 वैल्यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू इंक्लूड फीमेल्स, मेल्स एंड द थर्ड जेंडर इज योर बेस कैटेगरी. अगेन यू विल बी कंपेयरिंग. सो इफ यू हैव अ मॉडल लाइक दिस, NEP is equal to beta naught plus beta 1 females plus beta 2, suppose you say that third gender, right, TG, plus you have beta 3 with your CGPA, and you beta 4 is again single child, right? So तब जो beta 1 है ना, वो क्या कैप्चर करेगा, अगेन डिफरेंस बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स. एंड जो beta 2 है, beta 1 फीमेल माइनस मेल्स, ठीक है. और जो beta 2 है, दिस इज थर्ड जेंडर माइनस मेल्स. So all comparisons are always made against the base group, चाहे वो बेस ग्रुप को भी हो, चाहे तुम्हारे जितनी भी कैटेगरीज हो. ऑलराइट. सो now that you in your gender you had 3 categories, you had male, female, third gender, you can include any 2 of them. जिसको भी छोड़ोगे वो बेस ग्रुप बन जाए. Alright. Now the fourth thing that I want to discuss over here is, or actually that is the new thing that we are discussing. So this is your binary variables, how they are included in any model, and what they capture is they basically give you averages that differ by groups. They give you averages that differ by groups. एक तुम्हें वो intercept difference दे देते हैं. They tell you that every PRF, the PRF for every group is different. ठीक है, the PRF for every group is different. But so far we have already said के स्लोप सेम है, लेकिन है ना, CGPA इंक्रीमेंट होने से जितना फर्क NEP में आता है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए भी उतना ही आता है. बट फर्क ये है कि उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग है. Cool? Okay. So now let us discuss the third thing, which is interaction terms. Again, a very important concept from the point of view of this course, है ना, पता होना चाहिए ये. Interaction term का क्या मतलब है? Suppose this is how the interaction term is written, like suppose your model is and you include a female dummy and you include a single child dummy and CGPA. ठीक है, ये तुम्हारा मॉडल है. बट तुम्हें लगता है कि जो फीमेल्स और सिंगल चाइल्ड है ना, इनका जो है वो स्लोप भी अलग है, राइट? सो यू आर ट्राइंग टू से
slope नहीं, sorry, you are trying to say over here, you want to see कि हाँ हो सकता है कि females are behaving differently, average females on an average behave differently than males, single child on an average behave differently than like kids with siblings, right? But what about female single childs behaving differently than, or what about female behavior differing by whether or not they are single child, right? You want to see whether or not the behavior of females differ based on their single child categorization, single child status. अभी तक हमने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था. हम जब फीमेल्स को देख रहे थे तो हम सभी फीमेल्स को देख रहे थे, हम सिर्फ उन्हें मेल से कंपेयर कर रहे थे. लुक एट दिस, है ना, ये सारे टर्म्स अपने आप कट गए थे. ये सिंगल चाइल्ड वाला दोनों तरफ से कट गया था. वी डिड नॉट अलाउ females to have this difference in behavior based on their single child status. We were only saying कि females और males में फर्क है. बट अगर हम ये भी कहना चाहें, अगर हम ये भी देखना चाहें कि फीमेल्स और मेल्स में फर्क तो है, बट डू फीमेल्स ऑल्सो बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर सिंगल चाइल्ड बिहेवियर विद इन फीमेल डिफरेंस? इसके लिए हम इंक्लूड करते हैं इंटरैक्शन टर्म. So to see that, we will include another term, beta 4, which is an interaction between females and single child, plus of course your UI. अब देखते हैं क्या है. Expected level of NEP happiness given the female status is what? Let's see. Beta naught plus beta 1, female is 1, plus beta 2, single child, plus beta 3 तो हो ही गया, plus beta 4 times single child status. यहाँ पे fi takes a value 1 over here, right? ये fi 1 हो गया, ये fi 1 हो गया. This is what we have. And when you take the difference with males, you get everything, but you do not get wherever fi appears. So you get beta 2 single child plus beta 3 CGPA भी आ गया, and beta 4 गायब हो गया. So now when you cancel terms, this gets cancelled, this gets cancelled, and this gets cancelled. What you get is this difference is equal to beta 1 plus beta 4 times single child. What is this saying? This is telling you that females behave differently than men. All right, that's fine, क्योंकि beta 1 जो है हमारा वो तो अलग है ही. तो females behave differently than men, but this difference in behavior depends on whether or not they are single child. If they are not single children, right? If they are the kids with siblings, तब तो ये difference है beta 1, क्योंकि तब ये 0 हो जाएगा. लेकिन अगर वो सिंगल चाइल्ड है तो ये डिफरेंस beta 1 plus beta 4 हो जाता है, because single child takes a value 1, right? So then you can think of various scenarios. Suppose कि beta 1 जो है वो भी greater than 0 है और beta 4 भी greater than 0. So then this is saying what? That if your the women that you're looking at, if they are not single children, then the difference between male and females averages are beta 1, है ना? फीमेल ज्यादा खुश रहती हैं. लेकिन अगर तुम ये देखो, फीमेल्स ज्यादा दे आर मच मोर हैप्पियर एज कंपेयर टू मेल्स if they are with siblings. But if you look at the subcategory in which they are females and they are the only children in their homes, they are even more happier. उनका happiness level beta 1 plus beta 4 हो जाता है, which is a higher number, right? So now you have one line for males, beta naught, one line for females who are not single children, so beta 1 plus beta naught. Another for females who are single children, beta 1 plus beta naught, so beta naught plus beta 1 plus beta 4.
Okay, so we are saying that single children are happier with NEP4 क्योंकि घर में शायद अकेले पड़ जाते हैं, कॉलेज में उनको कुछ साथ मिलता है, जो भी रीजन है, मैं सिर्फ रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो उसमें भी इफ दे आर फीमेल्स, शायद घर पे नहीं रहना चाहती है ना, दे enjoy the freedom which they don't get at home. So then these females are much happier staying an extra year in college, right? And these females are much happier than the other females, and of course they are happier than men. So ये तीन lines मिल गई हैं, right? This is what interaction does. So interaction basically tells you कि जो है ये चार categories हो गई हैं, चार categories, males, right? Males who are not single child, males who are single child, females not single child, females who are single child. और इसमें क्योंकि तुमने यहाँ पे सिंगल चाइल्ड वाला वेरिएबल भी ऐड किया है, तो तुम्हारा बेस कैटेगरी हो गया मेल्स हु आर नॉट सिंगल चिल्ड्रन, ये बेस हो जाता है। कूल। आई वांट टू गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरैक्शन टर्म। जरूरी नहीं है कि इंटरैक्शन टर्म जो है वो डमी वेरिएबल्स के बीच में ही हो। सपोज लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल where you can do multiple things, right? So you can interact the female dummy with the CGPA variable also. तो जब वो CGPA वेरिएबल से इंटरैक्ट करोगे तो वो क्या मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा कि फर्क मार्क्स का भी है। So females who have say higher marks behave differently than females who have lower marks, right? Let me give you another example where I don't include dummies. Let us say that I say that NEP is a function of the old CGPA that we have, right? Plus we also want to include what else do you want to include? Height, weight, कुछ भी, random variable I'm adding. And then I want to see that whether the effect, not exactly effect, whether the response to a change in CGPA differs by the weight of children. Okay, so then I include an interaction term between CGPA and weight, right? So then how will I look at it? अब इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू करने का थोड़ा सा कम सेंस बनता है क्योंकि यू कैन हैव डिफरेंट कैटेगरी, सो यू कैन जस्ट लुक एट इट लाइक दिस, दैट व्हाट इज द चेंज इन एनईपी ड्यू टू अ चेंज इन सीजीपीए या फिर पर यूनिट चेंज इन सीजीपीए. What do you get? You get beta 1 plus beta 3 times weight. This is what you get, है ना? तुम एक, I hope you know how to do it. You can take a total differential, है ना? अगर तुम सबको differential करोगे, so what you have is you will put a delta sign here and you will put a delta sign before every term on the RHS also, है ना? अब यहाँ पे NEP में क्या चेंज आया? Of course beta नॉट में कोई चेंज नहीं आया, so this becomes 0. CGP में चेंज आया है, that is you will move it over here, और ये beta 1 के बाहर, beta 1 तो constant है, that will be coming out. W में कोई चेंज नहीं आया है, so this will also be equal to 0. अब यहाँ पे CGPA में चेंज आया है और W और beta 3 में नहीं आया है, so beta 3 और W बाहर आ जाएंगे ऑपरेटर के, and then you will have delta CGPA, right? So you have beta 3 times W into delta CGPA plus delta UI 0 है by assumption. जब तुम xi की वैल्यूज चेंज करते हो और ui की वैल्यूज एवरेज पे ना चेंज हो, that is the assumption. ठीक है, तो अगेन अंडर वही ZCM. अब जब तुम CGPA डिनोमिनेटर में लोगे तो this is what you will get. Okay, so now this is saying that suppose your beta 3 is negative, right? We are supposing this. Suppose your beta 3 is negative. This means that if like the change in NEP happiness, right, or beta 1 positive है, ठीक है? So as your CGPA increases, your happiness satisfaction levels with NEP increases, but it does not increase that for everyone, right? So what we are saying is that people who have higher weight,
है ना, people who are towards the obesity side, they have a lower happiness level, है ना। तो मान लो कि दो लोग हैं जिनका की सेम CGPA है, इनका हैप्पीनेस लेवल जो होगा उसमें से whoever has a higher weight will have a lower happiness level. So your response of NEP happiness to a change in CGPA depends on the weight of the person now. This is what you are assuming in the model. This is what you want the model to capture. It could be कि ये beta 3 जो है वो statistically significant ना आए, वो बात की बात है, वो हम तो inference और hypothesis testing करके चेक कर लेंगे, राइट। सपोज इसका जो p वैल्यू है या जो इसका t है वो बहुत ही कम है, 2 से बहुत छोटा है, स्टैंडर्ड एरर बहुत हाई है, that's a different matter. But what this model is trying to capture is that. So you want that you are able to capture whether there is any difference in change in NEP happiness levels with change in CGPA depending on the weight of the particular person, right? So if beta 3 is negative, then we are saying that heavier people are less happy with NEP even if their CGPA is increasing. All right. This is what your interaction term does. Interaction term is also very important in all the kind of causal studies that we are going to do in this course. Okay, so I hope that is clear. So जब ये हम करते हैं तो again हम फिर से ऐसा बात कर रहे हैं कि हम एक intercept difference create कर रहे हैं, right? इसी में so if you had suppose two categories obese and non-obese, तो हम वापस से पिछले वाले केस में चले जाते in which you can have a different PRF for obese, a different PRF for non-obese. But इसमें हमने उस कैटेगोरिकल वेरिएबल को बस हमने कंटिन्यूअस वेरिएबल बना दिया और हमने अलाउ किया है कि हर वेट के लिए एक satisfaction level any or the response to CGPA differ करे. Response of NEP to CGPA differs by the weight of the particular respondent. Cool. All right, so that finishes our discussion of binary variables and categorical variables, dummy variables, and interaction terms. Very important for these concepts. You should have a good grip on them. Another thing that I want to talk briefly is what happens if your dependent variable is categorical. Okay, so for example, you want to see suppose जो NEP वाला, this is your D, right? So we have dependent variable binary. सपोज तुम जब लोगों से पूछने गए और तुमने उनसे सिर्फ ये पूछा, तुमने उनको नहीं बोला कि तुम कितना खुश हो NEP से, तुमने उनसे सिर्फ ये पूछा कि क्या तुम NEP से खुश हो, yes or no, right? So your NEP, suppose I call it NEP B, right, which is binary NEP, right? So or rather BNEP, है ना, which is yes or no. And then when you did the coding, तुमने basically yes को 1 दे दिया और no को 0 दे दिया. और अब फिर तुम इसको प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो कि let's see that yes और no का आंसर CGPA पे कैसे डिफर करता है, right? So then you are BNEP को तुमने मॉडल किया as a function of again CGPA. Right? So then what is the expected value of BNEP given any value of CGPA? As we know, this is beta naught plus beta 1. CGPA, जो भी value है, under GCM, है ना। अब सोचो कि जो expected value of binary NEP क्या है? What is the expected value of a binary variable? किया था ना बर्नौली में। बर्नौली का expected value क्या होता है? Probability of success, which is nothing but the fraction of people who have given an answer yes, right? So when you have this kind of a model, तो तुम्हारा जो ये PRF है वो तुम्हें बताता है कि what is the average number of people, right, who said yes for a given level of CGPA. Not what is the fraction of people who said yes for a given level of CGPA, right? So suppose CGPA के तुम्हारे 10 values हो सकते हैं. So you 10 values, 12 values, whatever you want to assume. So suppose your CGPA can take 10 values. You give me a value of CGPA.
As usual, the PRF will give me what? The PRF will give me the expected value of NEP happiness. लेकिन इस केस में NEP happiness का expected value क्या है? Expectation of BNEP is basically the fraction of, proportion of respondents who said yes, that they are happy. So you give me a CGPA level and I will tell you कि कितने लोग happy हैं उस CGPA level पे, कितने proportion of लोग happy हैं. This is what it means when you have a binary variable as your dependent variable. तो तब जो ये PRF है ना, वो हर value of x variable के लिए इसका proportion देती है. Cool? Which is the expected value. If your CGPA was a categorical variable, suppose CGPA की जगह तुमने females include किया हुआ था, so then this will give you that how many females or what proportion of females are happy, what proportion of males are. That is what this will be. Cool. And beta 1 is going to capture the difference between happiness proportions between males and females. All right, cool. So now we are done with our discussion of all these binary variables and interaction terms. The next thing to do is look at, get to the discussion of the violation of the assumption. All right. So today I will focus only on two violations, and we will keep the star violation for the final lecture of Get Your Stats Straight. All right. So let's get to it. So this is E, where we are going to discuss violations of assumptions. Okay. All right. So I have just rewritten the assumptions that we have faced so far, just for some nomenclature. जब ये हम all 6 assumptions की बात करते हैं, these are all, if the collection of these 6 assumptions are called the classical linear model assumptions, CLRM assumptions, classical linear regression model assumptions, CLM या CLRM जैसे भी बोलते हैं उसको. एंड जब हम इस सबसेट की बात करते हैं 1 to 5, then as I told you, these are called the Gauss Markov assumptions. Okay. Now, out of these, ये जो 4 है ना, these 4, linearity, random sampling, no perfect collinearity and zero conditional mean, ये required हैं. These are required for the property of unbiasedness. और जो Gauss Markov assumptions हैं, they are required for unbiasedness plus minimum variance, है ना, blue. तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास 1 to 4 satisfied हैं, तो your estimators will be unbiased. ठीक है. जो होमोस्केडास्टिसिटी का रोल होता है, होमोस्केडास्टिसिटी का रोल है मिनिमम वेरिएंस अश्योर करने में. तो जब have written heteroskedasticity. So जब homoskedasticity का assumption violate होता है, right, then your OLS estimators, if your 1 to 4 is still satisfied, your OLS estimators will still be unbiased, but they will not be efficient. They will not be minimum variance. ठीक है. सो कभी भी अगर होमोस्केडास्टिसिटी वायलेट होता है तो अनबायसनेस पे आंच नहीं आती है, एफिशिएंसी पे आंच आती है. राइट. जो ये 6th assumption है, द नॉर्मैलिटी assumption, दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर इन्फरेंस पार्ट. जैसा हमने कहा, जब एरर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं
तब तुम्हारे जो एरर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस शुरू के 5 वाले भी चाहिए, तब जो तुम्हारे बेटा हैट हैं द एस्टिमेटर्स, they themselves have a normal distribution centered around the true population parameter values, full and minimum variance that can be of any other unbiased estimator. So हर लेवल का इंपॉर्टेंस हमें समझना है। अगर हम अनबायस्डनेस के लिए चिंतित हैं तो सबसे ज्यादा अटेंशन, सबसे ज्यादा चिंता हमें जीसीएम की करनी है। अगर हम एफिशिएंसी के लिए चिंतित हैं तो हमें हेट्रोस्केडास्टिसिटी के बारे में ध्यान देना है। होमोस्केडास्टिसिटी के बारे में ध्यान देना है। अगर होमोस्केडास्टिसिटी नहीं है बट जीसीएम है तो अनबायस्डनेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। Cool? ये सारे assumptions हैं द क्लासिकल लिनियर मॉडल assumptions, शुरू के 5 वाले गाउस मार्कोव assumptions हैं। और शुरू के 4 वाले ही सिर्फ रिक्वायर्ड है अनबायस्डनेस के लिए। Cool? ओके, नाउ लेट अस सी कि हम वायलेट करते हैं, एक एक करके जाते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत आती है। हम पहले को वायलेट नहीं करेंगे, ये मॉडल हमने खुद को बनाना, तो हम क्यों इसको आगे जाके वायलेट करेंगे, कोई सेंस नहीं है। वायलेशन कहाँ से आता है? वायलेशन वहां से आता है जहां पे हमने तो सोच लिया कि काश ऐसा होता, लेकिन असल में है नहीं, वहां पे वायलेशन है ना, वहां पे है कि योर रियलिटी डजंट मैच योर ख्याली पुलाव। बट अगर हमें यहाँ पे लीनियरिटी में ख्याली पुलाव ही बनाना है तो हम खुद ही बनाएंगे ना फिर, तो लीनियरिटी को वायलेट करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक, random sampling is something that is again we are not going to violate right now, not because it cannot be violated, of course it can be, but अगर हम क्रॉस सेक्शनल डेटा की बात कर रहे हैं तो और ठीक से सैम्पलिंग हुई है तो रैंडम सैम्पलिंग क्लोजली सेटिस्फाई होता है, तो अभी हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे, राइट। सो वी आर गिविंग ग्रीन सिग्नल टू linearity, right? We have given a green signal to linearity, we have given a green signal to random sampling. All right, let us start with a simple one which is no perfect collinearity, और इसका हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर कंफ्यूज किया जाता है with the violation of this assumption. All right, so let us start with E.1, multicollinearity. मल्टीकोलिनियरिटी क्या है? मल्टीकोलिनियरिटी ये है कि सपोज तुमने ऐसा मॉडल बनाया, I don't want to do CGPA and weight, let's do something else, let's do wage. ठीक है, so you say that wages that any person earns is suppose dependent on the education that the person has and the experience that the person has, right? Plus suppose तुम also include करना चाहते हो tenure के कितने दिन से किसी कंपनी में है या किसी इंडस्ट्री में है, however you want to define it. So now multicollinearity क्या कहता है? One thing that you will realize, you will realize that it usually is true in the data, is that there will be correlation among these independent variables. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे if on an average, right, you will observe that people who are more educated usually have less experience in the job market. क्यों? क्योंकि वो they did not start working earlier in their lives. They were getting educated for quite some time. जो अगर किसी ने PhD की है तो उसका जॉब मार्केट एक्सपीरियंस बहुत ही कम होगा, राइट। बट अगर किसी ने PhD की है तो उसका हो सकता है वेज ज्यादा, है ना। तो हमको ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है कि जो भी वेरिएबल्स तुमने इंक्लूड किए हैं वो आपस में कोरिलेटेड हो। एजुकेशन एक्सपीरियंस से कोरिलेटेड होगा, एक्सपीरियंस टेन्योर से कोरिलेटेड होगा, एजुकेशन टेन्योर से कोरिलेटेड होगा। यू वांट टू थ्रो इन एनी अदर वेरिएबल्स, दे विल बी कोरिलेटेड, है ना। अगर तुमने सीजीपीए और फैमिली इनकम इंक्लूड किया है तो सीजीपीए और फैमिली इनकम कोरिलेटेड है, हमने पहले ही डिस्कस किया है, राइट। नाउ दिस कोरिलेशन इज नॉर्मल। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि ये कोरिलेशन से दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, ऐसा कोरिलेशन नॉर्मल है और हार्मफुल नहीं है।
the correlation that we are worried about is between ui and any x variable. अगर ये है तो हमारा जीसीएम वायलेट होता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, राइट? सेकेंडली, सो इफ इंडिविजुअली या कोई भी तरीके से ये सारे वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं, दैट इज नॉट प्रॉब्लमैटिक. क्यों? क्योंकि द कोरिलेशन वी आर सेइंग इज नॉट परफेक्ट. So as long as the correlation is imperfect, एक suppose education is not a perfectly defined function of experience, तब तक we are fine. ये वाला जो assumption है ये तब violate होगा जब ऐसा हो कि जैसा हमने वो डिस्कस किया है ना, when your fi is equal to 1 minus mi, then there is no independent variation that comes from one variable if you include the other variable. यहाँ पे ऐसा नहीं है. हाँ कोरिलेशन है, लेकिन एक्सपीरियंस का अपना भी कुछ वेरिएंस है, एजुकेशन का अपना भी कुछ वेरिएंस है, एंड बोथ ऑफ देम इंडिपेंडेंटली आर ब्रिंगिंग थिंग्स टू द टेबल, राइट? नॉट अ प्रॉब्लम. अब मल्टीकोलिनियरिटी कहाँ पे आती है? मल्टीकोलिनियरिटी इज बेसिकली सेइंग दैट द कोवेरिएंस between suppose education and experience is very high. Very high. इसका मतलब है कि काफी हाई नंबर है उसके कोरिलेशन का, है ना? सो कोरिलेशन कैन लाई बिटवीन 1 and -1. सपोज दिस इज वेरी क्लोज टू -1 बिकॉज दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. इफ दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड मल्टीकोलिनियरिटी. नाउ अब इससे डिस्कस करते हैं. मल्टीकोलिनियरिटी मतलब है कि कोरिलेशन या फिर कोवेरियंस एक्सप्लेनेटरी एरियल्स के बीच में. हमने यू की कोई बात नहीं की, जीसीएम को नहीं छेड़ा अभी, बट जो भी कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मॉडल में इंक्लूडेड है, बट बहुत हाई वेरिएंस है. ठीक है? सो देन वी हैव टू डिस्कस कि इससे क्या दिक्कत होती है और क्या नहीं होती है, राइट? सो क्या दिक्कत नहीं होती है? सो नॉट अ वायलेशन. पहली बात ये क्लियर करनी है, मल्टीकोलिनियरिटी किसी भी 6 assumption का वायलेशन नहीं है. Not a violation of no perfect collinearity assumption. Very important. Not a violation. As long as perfect correlation नहीं है, violation नहीं है. लेकिन इतना भी मतलब harmless नहीं है. हार्मफुल, इसका बेसिकली हार्मफुलनेस क्या होता है, मतलब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है या नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि इफ यू हैव वेरी हाई कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो इंडिविजुअल इफेक्ट्स हैं, देयर कोएफिशिएंट्स, दे हैव अ वेरी हाई स्टैंडर्ड एरर. मतलब कोएफिशिएंट्स आर नॉट एफिशिएंट. इनफैक्ट नॉट एफिशिएंट भी नहीं, coefficients are not precisely estimated. If you have homoscedasticity satisfied, तो वो फिर भी minimum variance होंगे, that is fine, but वो minimum ही काफी high value होगा. So they are not precisely estimated, high standard errors. तो जब अक्सर ऐसा होगा कि उनका जो जब उनका वो करोगे, क्या नाम है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, so they will turn out to be statistically insignificant. तो जब बहुत ज्यादा कोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं तुम्हारे एक्स में, तो प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं आते हैं, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आते हैं. उसका पहले रीजन डिस्कस कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. रीजन ये है कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमने y का वेरिएंस एक्सप्लेन करना है, और वेरिएंस एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएंस चाहिए. वेरिएंस एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएंस चाहिए, x में वेरिएंस चाहिए, और जितना x इंक्लूड कर रहे हो उन सब x का इंडिपेंडेंट वेरिएंस चाहिए. हर कोई अपना अपना वेरी कर रहा है, बट अगर दो लोग हाईली कोलिनियर हैं तो एक, वंस यू इंक्लूड सपोज सीजीपीए या वंस यू इंक्लूड एजुकेशन,
What is experience variable bringing new to the table? If they are highly correlated, then the additional variance that experience is bringing is very chotu, very small. तो जितना कम वेरिएंस होगा एक्स वेरिएबल में, उतना कम तुम उसको प्रिसाइजली एस्टिमेट कर पाओगे, उसके कोएफिशिएंट को। क्यों? एक्सट्रीम केस ले लो, अगर एक्स का कोई मतलब एजुकेशन या एक्सपीरियंस का कोई रेसिडुअल वेरिएशन ही नहीं है, अपना कोई इंडिपेंडेंट वजूद ही नहीं है, तो उससे तुम क्या एक्सप्लेन करने जाओगे वेरिएंस ना? You cannot explain variance by a constant. That's the extreme case. That is why we rule out no perfect collinearity. We rule out perfect collinearity. बट अगर तुम नियर परफेक्ट भी पहुंच जाओगे तो भी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तुम प्रिसाइजली एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, right? So the problem is that you will have imprecise estimates, you will have high standard errors, and you will have statistically insignificant results. इसका solution इकलौता है is to, I mean, बाकी patchwork solutions भी हैं, but a sure short solution is to increase sample size. When you take a larger sample, तो standard errors अपने आप larger sample n को respond करता है. The larger the sample size, the smaller the standard error. So even if your x variables are correlated, एक large enough sample लोगे तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, वो ओवर पावर हो जाएगा सैंपल साइज के पॉजिटिव इफेक्ट्स। ऑलराइट, सो मल्टीकोलिनियरिटी एक इशू है, इसके बारे में बहुत ज्यादा इशू बनता भी है, बट इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। You have to be careful about it because you can get imprecise estimates, you can get insignificant results if you have high multicollinearity, but उसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक वेरिएबल को गायब कर दोगे अपने मॉडल से। Something that you should not do. You should not remove a variable just because it is multicollinear. Why? Because that variable will go in the error term और वो फिर वहां दिक्कत क्रिएट करेंगे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। That is your multicollinearity. Now we are going to skip over this one. Do it later. ये वाला जो है ये हमें ब्रिज देगा जो हम कर चुके हैं और जो करने वाले हैं। Now we will quickly get to homoskedasticity का वायलेशन। ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ डिटेक्शन एंड सोल्यूशन एंड एवरीथिंग, वो सब हम नहीं करेंगे, मैं सिर्फ तुम्हें लॉजिक समझाऊंगी। वो तुम बहुत कर चुके। लॉजिक क्या है? होमोस्केडास्टिसिटी से हमें क्या मिलता था? होमोस्केडास्टिसिटी से हमें मिलता था मिनिमम वेरिएंस, है ना? गाउस मार्कोव और पहले चार में फर्क सिर्फ होमोस्केडास्टिसिटी का है। होमोस्केडास्टिसिटी वायलेट हुआ, तुम्हारा जो ओएलएस एस्टिमेटर्स है अनबायस्ड रहेंगे, लेकिन अनबायस्ड एस्टिमेटर्स की दुनिया में वो बेताज बादशाह नहीं रह पाएंगे, वो मिनिमम वेरिएंस नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सो अब इसका सोल्यूशन टू फोल्ड, राइट? डिटेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, ये ऑलरेडी एक बार एग्जाम का रट्टा मार चुके हो और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज में जाओगे तो उसका बता देंगे क्या करना है। सो दिक्कत क्या है वो समझते हैं, मतलब सोल्यूशन क्या है। दिक्कत हमने समझ ली, सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन ये है जिसको बोलते हैं होमोस्केडास्टिसिटी और हेटेरोस्केडास्टिसिटी रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स। लेट मी जस्ट आल्सो राइट इट, सो दिस इज योर E.2 where we are saying that the issue is heteroskedasticity, which is a violation of the fifth assumption. Heteroskedasticity. Okay, इसका harmful effect क्या है? That OLS estimators no longer minimum variance. इसका दो सोल्यूशन होता है। एक सोल्यूशन है कि तुम, और जो तुम्हारे वेरिएंस के फॉर्मूले होते हैं ना, जो हमने पहले वेरिएंस के फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं शुरू में, मतलब वी डिडंट राइट इट बट यू नो व्हाटएवर इज देयर इन द बुक, व्हाटएवर इज द फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ही गलत हो जाता है। दैट फॉर्मूला विल गिव यू द रॉन्ग आंसर, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज द यू करेक्ट द फॉर्मूला। OLS estimator is no longer minimum variance प्लस वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड एरर के जो फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूले बिकम इनवैलिड।
दे विल गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्योंकि उनका अजम्पशन है कि सिग्मा स्क्वायर सबके लिए सेम है, बट जब सिग्मा स्क्वायर ही सेम नहीं रहा तो सिग्मा स्क्वायर जहां जहां जिस फॉर्मूले में जाएगा वो फॉर्मूला गलत आंसर ही देगा। ठीक है, तो इसका दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन जो इस चीज को टारगेट करता है, वन सोल्यूशन विल टारगेट दिस इशू। इस इशू को टारगेट करने का मतलब है कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ओएलएस का मिनिमम वेरिएंस नहीं आएगा, क्योंकि फिर भी हम ओएलएस के पास जाते हैं क्योंकि भाई अनबायस तो है ना और इजी टू कैलकुलेट है। तो अगर तुम्हें मान लो कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं ओएलएस से ही काम चलाते हैं, मिनिमम वेरिएंस नहीं है कोई बात नहीं, बट हम जो वेरिएंस है उसको ही सही तरीके से कैलकुलेट कर लिया जाए, जो पुराना वाला गलत फॉर्मूला है उसको करेक्ट कर लेते हैं। सो द सोल्यूशन टू दिस इज करेक्ट द फॉर्मूला। These are called heteroskedasticity robust standard errors. तो तुम अपने फॉर्मूले को करेक्ट कर लो, जो भी यूज कर रहे थे उसको सिग्मा स्क्वायर की जगह हर जो करेक्ट सिग्मा आई स्क्वायर है उसको डालो और तुम्हें रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट यू स्टिल वर्क अंडर ओएलएस फ्रेमवर्क वेल नोइंग कि दिस मे नॉट बी द मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटर्स। ये एक तरीका है, कई बार यही करने से काम चल जाता है। दूसरा है कि तुम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ। अब ओएलएस मिनिमम वेरिएंस नहीं देंगे, तो देखते हैं क्या देंगे। यू change your estimator so that now you get minimum variance. So change the estimator, and this gives you what is called the weighted least square estimator. WLS, ये नाम सुना होगा। ये जो वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स होते हैं ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि अब ओएलएस बेस्ट नहीं रहा, कोई और के साथ काम चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखते हैं कि ये करते क्या है एक्चुअली। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स इवन हियर, बट आई विल गिव यू कि क्या करते हैं ये। ओएलएस क्या करता था पहले समझते हैं। ओएलएस क्यों ऑर्डिनरी, मैंने बोला था वील कम बैक टू दिस, व्हाई वी कॉल इट द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। ओएलएस डिड व्हाट, ओएलएस डिड दिस, ui hat स्क्वायर को मिनिमाइज करो, है ना। यू डिड मिनिमाइज द सिग्मा ui hat स्क्वायर, रेसिडुअल निकाला, स्क्वायर किया और ऐड किया और उसको मिनिमाइज किया। इसका मतलब क्या किया तुमने, you basically minimized this expression u1 hat square plus u2 hat square plus all the way till un hat square, जहाँ पे सैंपल साइज n था, हर ऑब्जर्वेशन का रेसिडुअल लेकर स्क्वायर करके सम किया और मिनिमाइज किया। जो भी वैल्यूज ऑफ बेटा वन हैट और बेटा टू हैट उसको मिनिमाइज करते हैं उनको चूज किया। दिस इज व्हाट यू डिड, विच इज लाइक सेइंग कि तुमने हर किसी को इक्वल वेट दिया। 1 टाइम्स u1 hat square plus 1 into u2 hat square, राइट। अब दिक्कत ये है कि अगर तो होमोस्केडास्टिसिटी है तब तो ठीक है, क्योंकि सबका वेरिएंस सेम है तो सबको इक्वल वेट दे दो। बट अगर हेट्रोस्केडास्टिसिटी है तो क्या होगा, सपोज हेट्रोस्केडास्टिसिटी ऐसा है कि जैसे जैसे तुम्हारे एक्स का वैल्यू बढ़ता है तुम्हारा एरर का वेरिएंस भी बढ़ जाता है। Suppose that is the case. Suppose your error variance sigma I squared is a positive function directly related to the value of x. Suppose जैसे जैसे CGPA बढ़ता है वैसे वैसे whatever is in your error term उसका वेरिएंस भी बढ़ जाता है। वैल्यू की बात नहीं कर रहे, वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तब जब तुम सबको इक्वल वेट दोगे तो क्या होगा, सपोज तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया चीजों को, तो उस केस में क्या होगा दैट इफ यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद दिस फॉर्मूला यू विल डू व्हाट, यू विल, ये तो छोटे नंबर्स हैं, ये u1 हैट u2 हैट ये सब तो छोटे छोटे नंबर है क्योंकि यहां तक तो वेरिएंस कम है।
लेकिन जैसे तुम लार्जर वैल्यूज पे जाते जाओगे एक्स के, लेटर ऑन इन योर सैंपल, दीज आर वेरी बिग वैल्यूज, इनका वेरिएंस बहुत ज्यादा है, ये रेसिडुअल्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये वाले जो है ये डिसबैलेंस, इनका सम करोगे तो ये ओवर पावर कर देंगे ना सम को, ये सम को आर्टिफिशियली, नॉट एग्जैक्टली आर्टिफिशियली, बट दीज विल पुल अप द सम टू अ लार्ज नंबर। नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस सम, दैट्स फाइन, यू विल मिनिमाइज, बट द पॉइंट इज कि सम ही इतना बड़ा आ जाएगा, this entire sum is very large, so you can minimize it, but it will still be large. There will be a lot that is unexplained. There will be a lot that is going into the variance, right? And therefore, your estimators will not be precisely estimated. Solution क्या है? Solution है WLS, weighted least squares. Weighted least squares में तुम minimize करते हो अगेन UI हैट स्क्वायर को, बट तुम हर UI हैट को वेट देते हो विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वेरिएंस। तो जो जितना जिस ये जो बाहर वाले UI हैट्स थे, इनका अगर वेरिएंस ज्यादा है ना तो इनका वेट कम होगा, लेस वेट, राइट? सो देन इफ यू गिव देम लेस वेट, राइट, सो तुम्हारा जो सम है वो किसी भी पैरामीटर के लिए वो अपने आप कम हो जाएगा, है ना? पहले तुम कोशिश कर रहे थे, सपोज 1 से 100, आई डोंट नो, नॉट अ गुड एग्जांपल, सपोज अर्लियर यू वर ट्राइंग टू मिनिमाइज द साइज ऑफ अ हिप्पो, राइट? सो हिप्पो का साइज तुम कितना भी मिनिमाइज करो, हिप्पो हिप्पो है, बट अब तुम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो द साइज ऑफ ए से हॉर्स, और द साइज ऑफ अ डोंकी, और द साइज ऑफ अ डॉग, विच आर वेरी स्मॉल। तो तुम उसको जब मिनिमाइज करोगे तो तुम्हारा आंसर छोटा ही आएगा। मिनिमाइज तुम दोनों केस में कर रहे हो, दैट इज अ कैलकुलस वाला पार्ट, वो मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन मिनिमाइज जब कर रहे हो तो किस चीज को मिनिमाइज कर रहे हो वो भी देखना जरूरी है। यहाँ पे तुम एक हिप्पो को मिनिमाइज कर रहे हो, आंसर तुम्हारा हिप्पो टाइप का ही आएगा, बट यहाँ पे अगर तुम एक डॉग को मिनिमाइज करने लग जा रहे हो, सॉरी WLS में अगर तुम एक डॉग को मिनिमाइज करने लग जा रहे हो तो तुम्हारा सम भी छोटा है। और ये क्या है, ये बेसिकली द हायर इज योर वेरिएंस, right, your variance of the estimator is directly proportional to the variance of the residuals, ठीक है? सो जब ये मिनिमाइज कर दोगे तो रेसिड्यू, तो एस्टिमेटर का वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर अपने आप कम हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव अ बेटर एस्टिमेट, मोर प्रिसाइज एस्टिमेट। ओके, ये है WLS, इसीलिए इसको ऑर्डिनरी बोलते हैं, जहाँ पे तुमने एक सिंपल समेशन किया, हर किसी को ऑर्डिनरीली इक्वल वेट दे दिया। इसको वेटेड बोलते हैं, जहाँ पे तुमने वेट को कम कर दिया उन रेसिडुअल्स के लिए जिनका बेसिकली वेरिएंस, जिनका वैल्यू बहुत ज्यादा था। एंड व्हेन यू डू दैट यू हैव, लाइक तुमने गेम ही चेंज कर दिया, है ना? तो यू गेट बेटर आंसर्स, राइट? सो दैट इज योर हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम, क्या उससे दिक्कत होती है। नाउ देयर इज अनदर थिंग, जब ऑटो कोरिलेशन एक है, नो ऑटो कोरिलेशन, इन गुजराती you must have seen that, it's a term. Now auto correlation is something that typically comes with time series kind of analysis. We will discuss it when we discuss time series, ठीक है? उसका भी फर्क जो है वेरिएंस पर ही आता है, so don't worry about it too much right now. Now in the next lecture we will focus on the star assumption, which is ZCM. ये करेंगे हम। So now everything is fine. Normality वाला assumption के लिए, मतलब normality is required for making inference, so you don't have to worry about that. और बाकी चार के बारे में हमने बात कर ली, एक बचता है next time for that. All right, I hope things were clear, intuitively clear mainly. We did not do any formula or anything, but I think that जो भी चीज हमें required है वो हमने यहाँ पे cover कर ली। अब जो ये bridge है उसको हम last class में cover करेंगे। Okay guys, so I'll see you for the next session soon, and happy learning. Bye bye.